I hope so you enjoying to see these videos. In this video we are going to discuss about the some topic that we skip earlier video: load balancing, synchronization concept in working, timer, some little bit tuning timing and timers, administrative distance, that is internal and external. So that is very good. One more thing that I would like to mention, again I am using the same topology that has 2811 series into 1 2 3 4 5 router TS is working as a terminal server router to take the console rest of the devices, as you know from the previous video. One more thing that I changes in this topology for load balancing, for load sharing, what I using right now, I using two serial connection that goes to router D. I install router C a special WIC card, not a special WIC card, 2 TWIC card. So in router C has actually 4 serial पोर्ट, हालांकि उसमें से अभी हम 3 यूज़ कर रहे हैं, और मैं उसमें क्या करने जा रहा हूँ, कोर C और कोर D के बीच में मैं लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग BGP के थ्रू करने जा रहा हूँ। हालांकि और भी कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ, और कोई भी BGP राउटिंग यहाँ पे नहीं चल रहा है, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग किया है। अगर मैं अपने एलियास सो IP राउट के थ्रू दिखाऊं तो दूसरा एलियास मैंने बनाया है सो IP BGP, जिसमें ये हम देख सकते हैं कि हमारा कोई BGP रन नहीं कर रहा है। लाइकवाइज अगर हम C में जाएँ तो यहाँ पे भी डू सो IP राउट, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग की गई है, और राउटर C, राउटर D, terminal C और B, these 3 routers is running a interior or IGP protocol. So right now I'm using Enhance IGRP as per previous videos. So 1, 2, 3 and 4, these 4 routers are the BGP speakers, means they running BGP protocol, and terminal servers is using Enhance IGRP. So this is not the BGP speaker as well. In other hand, so let me switch to the TS and so IP route. Enhance IGRP के थ्रू मैं लर्न करना हूँ 2.2.2, जो कि कोर राउटर B की लूपबैक की IP एड्रेस है। Enhance IGRP के थ्रू 4.4.4.4 लर्न कर रहा हूँ, जो कोर राउटर C का लूपबैक IP एड्रेस है, क्योंकि राउटर B और C लूपबैक जो नेबर बनेंगे वो लूपबैक के थ्रू, एंड everything is fine. So first of all I going to form the neighbor adjacency or configure the BGP from core router A to core router B. So BGP router BGP router BGP 100 neighbor 2.2.2.2 मतलब core router B है। इसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 200, जैसा कि आप देख सकते हो। क्योंकि वो eBGP नेबर बनेगा तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, इस वजह से eBGP मल्टी होप मैं 2 दे देता हूँ। और अपडेट हमारा कहाँ से भेजा जाए, अपडेट सोर्स मेरा हो माई लूपबैक, लेट्स सी मेरा कौन सा लूपबैक है, एक्चुअली 2 लूपबैक मैंने बनाया है, डू SIB सो IP इंटरफेस लूपबैक 1। सो वेरी गुड, मेरा अपडेट सोर्स होगा लूपबैक 1, और आपको जैसा कि पता है कि BGP में हमें एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से नेबर को ऐड करना पड़ता है। तो मैं कोर राउटर 2 पे स्विच करता हूँ, दैट इज़ B, एंड अगेन रनिंग कमांड नेबर 1.1.1.1 which have remote autonomous system 100 as well as again this is the eBGP neighbor or a speaker, so I also need to run command multi-hop. And final piece, update source my I think loopback 0 loopback 0 है या loopback 1 है, do so IP interface brief loopback 0, that's very good। और यहाँ के बीच में हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। मेक श्योर राउटर B get advertisement from the IGP of loopback address of core router C. So this would form neighbor adjacency,
मीनवाइल मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ नेबर 4.4.4.4 जो कि कोर राउटर सी है, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 200 जो कि EBGP नेबर हमारा बनेगा। तो EBGP नेक्स्ट हॉप मल्टी हॉप कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ एक कमांड हमें और चलाना पड़ेगा कि मेरा जो अपडेट सोर्स हो वो लुपबैक 0 हो, क्योंकि अगर हम देखें तो 2.2.2.2 है, 0 लुपबैक मेरा। और स्विच करते हैं कोर राउटर सी पे। एक बार मैं सबसे पहले पिंग करना चाहूँगा क्या मैं 2.2.2.2 को लर्न कर पा रहा हूँ। यस एग्जैक्टली। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 200 कोर राउटर सी पे हूँ, TS पे भी करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। एंड नेबर दैट आई एम गोइंग टू फॉर्म विथ 2.2.2.2 दैट इज कोर राउटर B which have remote autonomous system is 200, that means IBGP peer, and then loopback address will be source, update source will be loopback address. My loopback zip, I think so, do SIB, yes that is कोर राउटर A और कोर राउटर B अभी तक नेबर नहीं बने, जिसका कारण क्या हो सकता है। मैंने कहा loopback 1 नेबर EBGP 2.2.2 मल्टी हॉप, हाँ 200 रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम तो सही है। फिलहाल मैं इसको बाद में देखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। तो लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी कोर राउटर C और कोर राउटर D के बीच में देखें, मैं थोड़ा सा नीचे लाना चाहूँगा। नेबर, सबसे पहले नेबर नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले मुझे कोर राउटर C और कोर राउटर D might be ISP, consider this is the ISP router and this is you or your company. So what you need to do, as we know ISP to you cannot use IGP, interior gateway routing protocol, like enhanced IGRP, OSPF and so on and so forth in this scenario actually. So what I'm going to do, I'm going to use static route. So we have two link goes to the same destination, that is ISP. और एक और अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि हम स्टैटिक रूट जो कि सीरियल इंटरफेस से स्टैटिक अगर ने कॉन्फ़िगर किया है तो उसमें भी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। यू कैन गो गूगल एंड फाइंड आउट सच थिंग, बट यू डोंट नीड टू गो गूगल राइट नाउ, आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग। सो मैं स्विच करता हूँ कोर राउटर C के पास, और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या मैंने राउटिंग टेबल में क्या क्या है। मैं स्टैटिकली 5.5 सीरियल स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया है। अगर हमें 5.5.5.5 के पास जाना होगा तो मैं सीरियल 0/0/0 से प्रेफर करूँगा। और मेरे पास एक और इंटरफेस है जो कि ये अभी लगा है, ये दैट शुड बी 0.1.1.1, उसके थ्रू भी मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। सो गुड, लेट्स सी IP रूट। तो अभी आप स्टैटिक रूट में देख सकते हो हमारे पास एक ही जाने के लिए रास्ता है। IP रूट 5.5.5.5 दैट इज डेस्टिनेशन, 255.255.255 एक्सक्यूज मी 255.255.255, और उसके लिए मैं इंटरफेस S0/1/1 से भेजूंगा। और अब जब आप देखते हो डू सो IP रूट, तो अब आपको मिलता है कि आप 5.5.5.5 पे जाने के लिए दो इंटरफेस हैं, एक सीरियल 0/0/0, एक सीरियल 0/1/1। और मीनवाइल मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास कितने सो IP इंटरफेस ब्रीफ की हमारे पास इतने लूपबैक में सीरियल इंटरफेस कनेक्टेड हैं। तो 1/1 देखिए यूज़ है हमारा, ये यूज़ में हमारा नहीं है, दैट्स वेरी गुड। कोर राउटर D के पास आए अगर हम सो IP राउट करके देखें तो यहाँ पे स्टैटिकली सिर्फ एक 4.4 जाने के लिए एक इंटरफेस सेलेक्ट किया गया है। सॉरी, मैं फिर से चलाता हूँ कमांड IP रूट। इफ आई वांट टू गो 4.4.4.4 255.255.255.255 आई कैन ऑल्सो चूज S0/0/1। और फिर से अगर मैं कमांड चलाऊँ तो IP राउट करके, तो वी कैन फाइंड राइट देयर
कि इनके बीच में इस लोकेशन पे जाने के लिए मेरे दो सीरियल इंटरफेस हमारे काम कर रहे हैं। फाइनल पीस वेरिफिकेशन का होता है, तो हम कोर राउटर सी या कोर राउटर डी कहीं से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोर राउटर डी पे पहले मैं जाता हूँ और सी पे जाता हूँ, सॉरी, पिंग 5.5.5.5 करता हूँ, जो लुपबैक एड्रेस बना है कोर राउटर डी पे। तो यहाँ से आप लोड बैलेंसिंग नहीं पता कर सकते हो, मैं इस पर यूज़ करता हूँ ट्रेस रूट 5.5.5.5। और अब हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। आई होप कि लोड बैलेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि एक कमांड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। एंड लेट्स सी होता क्या है। कम ऑन कम ऑन। सो पहला जा रहा है 200.200.4.2 के थ्रू। मैंने यहाँ से पैकेट भेजा, तो ऊपर का 4.2 ये आईपी एड्रेस है। एंड दूसरा हम देखते हैं 6.2 हो रहा है। दैट्स वेरी गुड। लोड बैलेंसिंग हो रहा है। एक स्पेशल कमांड भी चलता है, मतलब मतलब अभी बताना चाहिए या बाद में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेट्स सी, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो एक जा रहा है 4 के नेटवर्क से, एक जा रहा है 6 के नेटवर्क 6 के नेटवर्क से। सो अपर वन इज़ 4 एंड डाउन वन इज़ 6 नेटवर्क। एक और कमांड मैं चलाना चाहूँगा यहाँ पे। इंटरफेस एक है हमारा, एक्सक्यूज मी, डू सो IP राउट 5 पे पहुँचने के लिए S0/0 भी यूज़ हो रहा है, S0/0/1 इंटरफेस S0/0/0 एंड सीरियल रीस्टार्ट डिले 0। स्पेशली एक कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा लोड बैलेंसिंग और अच्छे ढंग से हो। सेम कमांड मैं दूसरे तरफ करने जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 सीरियल रीस्टार्ट डिले 0। मेरे हिसाब से सब कुछ अभी बताना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। एक बार मैं फिर से ट्रेस राउट करता हूँ और देखता हूँ क्या ट्रेस रूट 5.5.5। और हम फिर से देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग हमारा होना चाहिए एक अच्छे ढंग से। क्यों ना मैं एक बार कोर राउटर डी से भी देख लूँ, ठीक है। तो कोर राउटर डी से मैं पिंग करता हूँ 4.4.4 सक्सेसफुल ट्रेस राउट। अगर मैं जाना चाहता हूँ 4.4.4.4 तो मैं दो डिफरेंट लिंक या पाथ से होते हुए जाऊँगा, जो चीज़ प्रूव करता है कि हमारे इनके बीच में लोड बैलेंसिंग हो रही है। सो एक 4 के नेटवर्क से होते हुए जा रहा है, दूसरा 6 के नेटवर्क के से होते हुए जा रहा है। और अब अगर हम नेबर एडजेसेंसी फॉर्म करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, सेम चीज़ हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ से लुप बैक से, तो ऑटोमेटिकली हमारी लोड बैलेंसिंग एक इस लिंक से, एक इस लिंक से, एक इस लिंक से, एक इस लिंक से पैकेट हमारे जाएंगे। सो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग होगा। विश्वास करो, अभी भी लोड बैलेंसिंग में सभी चीज़ें हमने नहीं पढ़ा, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के बारे में भी BGP का बताया। चलो तब तक नेबर हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमने वैसा ही चल रहा है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP को राउटर सी पे हूँ, तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम 200 चल रहा है, और नेबर 5.5.5.5 है, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम बनेगा 300। और इनको ये EBGP नेबर है तो मल्टी हॉप 2 हमने कह दिया। साथ ही साथ मेरा कह दिया अपडेट सोर्स होगा मेरा लुपबैक 0, क्योंकि डू IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखो तो लुपबैक 0 की IP एड्रेस है 4.4.4.4। Same thing I need to configure to the router D that has autonomous system 300. Router 300, not BGP, and then not 3000. That should be 300. Very good. And then neighbor 4.4.4.4. Oh, sorry. Then remote autonomous system core router C, that is 200. As well as this is the EBGP नेबर। सो मल्टी हॉप 2 मैं लगा देता हूँ, क्योंकि 2 ही हॉप की दूरी पे है। और लुपबैक अपडेट सोर्स में जो देता हूँ, लुपबैक आई थिंक इसमें 1 होगा, मुझे देखने दो। USIP लुपबैक 1 है एग्जैक्टली। सो लुपबैक
अपडेट्स और लुक बैक 1, अपडेट्स और लुक बैक 1। सो कुछ मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करने जा रहे हैं। मैं देखने जा रहा हूँ, ट्रबल शूट करने जा रहा हूँ कोर राउटर ए कोर राउटर बी के बीच में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं केबल वेबल का फॉल्ट है। तो लैब में मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ। सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन लैब, दैट्स वाई थोड़ा सा आप हमिंग की साउंड भी पाते हो। डिवाइसेस जब चालू होती हैं तो हूं की आवाज़ करती हैं। सो प्लीज़ वेट, आई एम कमिंग एज सुन एज पॉसिबल। सो देयर वी गो, वी फिक्स दैट एंड यू कैन सी 2.2.2.2 neighbor adjacency up. I would like to run the command show IP BGP summary। मैंने एक एलियास बना के रखा है और हम देख सकते हैं कि हमारा नेबर बन चुका है। राउटर बी पे भी हम कमांड चला सकते हैं, do show IP BGP summary and sure enough 1.1.1 and 4.4.4 is equal to core router C. TS there is no BGP, core router C. Then so IP क्या मैं एलियास भी अपना चला सकता हूँ, so IP BGP summary। आप बताओ भाई, टाइप मैंने बटन दबाया तो अपने आप सही हो गया। 2.2.2 5.5.5 कोई प्रेफिक्स अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया। सो लोड बैलेंसिंग का तो हमने देख लिया, दैट इज़ वेरी गुड। एक बार हम नेटवर्क को एक अच्छे कनेक्टिविटी में लाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें सो आईपी रूट करके, तो हमारे पास सिर्फ स्टैटिकली कनेक्टेड है। सो आईपी बीजीपी से करें, क्या हम कोई नेटवर्क बीजीपी के थ्रू लर्न या अपडेट कर रहे हैं किसी को? सो नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू this is my loopback 0, that is 200.200.0.0.0 not 0.2 times 0 actually। उसको मैं BGP के थ्रू एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। सो राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 100, एक कमांड चलाया नेटवर्क that is 200.200.0.0। so as soon as I executed the command and now I can verify using the command so do so IP BGP and sure enough you are updating, you have a table of 200.200.0.0 and you are the next hop, means originated from your side। और आगे की कुछ चीज़ें अभी हम जानेंगे, हालांकि अभी नहीं, हमने इसको डिस्कस किया। आपके लिए वैलिड रूट है, अगर कोर राउटर बी के पास आए तो कोर राउटर बी को भी वो अपडेट मिलना चाहिए। तो डू सो IP BGP और एग्जैक्टली नेक्स्ट होप 1.1.1.1 है। अगर हम डू पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर पिंग करेंगे 200.100.0.1 ऑब्वियसली वी विल गेट द रिप्लाई बैक। सो कोर राउटर बी विल सेंड अपडेट टू कोर राउटर सी सिंस ही इज सेंडिंग अपडेट टू IBGP नेबर। क्या मेरा मार्कर का कलर मुझे चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि दो चीज़ें सेम लग रही हैं। लेट्स सी ब्लैक कर लेते हैं। Since I get information from the EBGP neighbor and I am going to advertise to IBGP neighbor। और फिर देखो क्या होता है, हालांकि हमने ऑलरेडी उस पर डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँ सो IP BGP तो हम पाएंगे कि नेक्स्ट हॉप है 2.2.2.2 and 200.200.0.0। एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन कोर राउटर सी कोर राउटर ए के उस इंटरफेस को पिंग नहीं कर पाएगा। अब कोर राउटर डी में अगर हम जाके देखें क्या कमांड चल रहा है, सॉरी क्या अपडेट्स है। सो IP BGP अगर हमने कमांड चलाया, क्या मैंने यहाँ पे एलियास नहीं बनाया था बट हमने कमांड गलत लिखा। तो इसके लिए आप इस कमांड यूज़ कर सकते हो, नो IP डोमेन लुकअप। फिलहाल के लिए मैं Ctrl+Shift+6 प्रेस करता हूँ, जो हमारा अबॉर्ट कर देता है नेम लुकअप को, आप देख सकते हो। सो Ctrl+Shift+6 प्लीज, गुड, देयर वी गो। सो IP BGP ये था कमांड। और 200.200.0.0 नेक्स्ट हॉप है 4.4.4.4 जो कि मैं अपडेट पा रहा हूँ कोर राउटर सी की तरफ से। एक चीज़ मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँगा कोर राउटर बी पे, वो चीज़ क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर
eBGP अपने नेबर eBGP को अपडेट देता है तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ नहीं रखता, ये नेक्स्ट हॉप 1.1.1 को रखेगा। जबकि इसके राउटिंग टेबल में हम देखा, BGP टेबल में, टोपोलॉजी टेबल में तो हमने देखा नेक्स्ट हॉप है 2.2.2.2। दैट मीन्स बी कह रहा है, इसके लिए बी पे एक कमांड चलना चाहिए नेक्स्ट हॉप सेल्फ। तो आई थिंक ये चल चुका है और एक बार मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँगा राउटर बी पे आके। सो यहाँ पे एलियास में चला सकता हूँ, एलियास नहीं, डू सो रन सेक्शन BGP। यस, श्योर इनफ ऑलरेडी यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूटेड है कि 4.4.4.4 जो कि मेरा नेबर है, इसके लिए मैं नेक्स्ट हॉप सेल्फ रहूँगा। अगर ये कमांड मैं हटा देता हूँ, जैसे लो आगे मैं नो कर देता हूँ और जी पिन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके पहले कि मैं डू क्लियर, मैंने इस पर डिस्कस भी किया है मेरे हिसाब से IPBGP मेरे हिसाब से इसे फिर से नहीं बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, फिर से हम डिस्कस भी कर लेते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। और 4.4.4 भी अप हो गया है, 1.1.1 भी अप हो गया है। उस पर आके एक बार फिर से वेरिफिकेशन करें तो अब हमें नेक्स्ट हॉप 1.1.1 मिल रहा है, जो कि बेस्ट रूट में नहीं सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज आई कैन नॉट रीच टू 1.1.1.1। सो मैं एक बार फिर से जो नो मैंने लिखा था आगे जाके मैं वेरीफाई करा रहा था आपको। फाइन हैप्पी। सो सबसे पहले चीज़ अब डिस्कस हमने कर लिया लोड बैलेंसिंग। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन। एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है मैं सबसे पहले समझाना चाहूँगा। सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है तो मुझे क्लियर कर लेने दो जो मैंने पहले। वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम 200, ऑटोनोमस सिस्टम 100 एंड ऑटोनोमस सिस्टम 300। सो आई एम वर्किंग एज ए ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम। यूजिंग मी 300 कैन टॉक टू 100 एंड यूजिंग मी 100 कैन टॉक टू 300 एंड वाइस वर्सा। सो यू नो, अगर सिंक्रोनाइजेशन रूल ये कहता है, अगर हमारे IGP दैट इज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उस नेटवर्क को जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया गया है थ्रू BGP, फिर से मैं बताना चाहूँगा, IGP राउटर्स जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया गया है BGP से, वो एक दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में तब तक नहीं फॉरवर्ड करेंगे जब तक कि उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन ना हो। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो नेटवर्क BGP से लर्न किया जा रहा है वो IBGP से भी लर्न किया जाए। यानी अगर कोड TS 2.200.200.200.0 को जानता है, तभी कोर राउटर C अपने राउटिंग टेबल में एक वैलिड रूट या रूट रखेगा 200.200.200.0। लेकिन अभी आपने देखा कि वो तो था, ऑलरेडी था। यस, अगर मैं इसे पिंग करूं तो पिंग नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क का ब्लैक होल कंसीडर किया जाएगा। सो एक तो ब्लैक होल है, आप समझ रहे हो, बट इवन देन आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड दैट अपडेट टू कोर राउटर D। सो 2 तरीके, या तो फिक्स करने के लिए इसे हम बता दें IGP अपने आप हो जाएगा, या पहले कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, iOS की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि iOS 12.2 से सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, पहले इनेबल्ड रहता था। तो हमें एक कमांड चलाना पड़ता था, नो सिंक्रोनाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ बताने की एक बार और, थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। ये यहाँ पे हमारे पास 3 ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम 100, ऑटोनोमस सिस्टम 200, 300। ऑटोनोमस सिस्टम 100 ने एक नेटवर्क ऐड किया 200, जो कि कोर राउटर B और कोर राउटर C को वैलिड रूट की तरह दिख रहा था। उनके राउटिंग टेबल में भी वो बेस्ट रूट की तरह आ जाएगा। लेकिन IGP की अगर हम बात करें, जो कोर राउटर TS है हमारा, TS को पता नहीं 200.200.0.0 कहाँ है। इवन देन कोर राउटर C फॉरवर्ड कर रहा था कोर राउटर D को। तो सिंक्रोनाइजेशन कहता है, सिंक्रोनाइजेशन रूल सेज दैट योर IGP रूट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड टू द BGP रूट और EBGP रूट, सॉरी EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल।
देन आफ्टर यू कैन फॉरवर्ड द अपडेट टू द नेक्स्ट ऑटोनोमस सिस्टम। हालांकि चूंकि मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो है, मैं दिखाना चाहूँगा, डू सोवर, वो 12.4 है, जिसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नो सिंक्रोनाइजेशन इनेबल्ड है। अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि नो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल्ड कैसे है। तो मैं कमांड चलाता हूँ डू सो रन सेक्शन, क्यों ना मैं सब पे कमांड चलाऊँ। तो सब पे चलाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कमांड विंडो ले लेता हूँ। क्योंकि इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ सिक्योर CRT टर्मिनल एमुलेटर, जो कि मेरा बेस्ट टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर है, जिससे क्या होगा एक साथ सभी पे कमांड हमारा चलेगा, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। सो आई होप कि क्या मैंने सब पे कहा था, सेंड आउट नहीं कहा था, सॉरी, TS को छोड़ देते हैं, ठीक है, एग्जिट एग्जिट है, सॉरी एग्जिट यहाँ पे चलाना था। अब जो कमांड मैं यहाँ पे चलाऊंगा वो सब पे एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, जिसका मतलब सबके सब प्रिविलेज में आ चुके हैं हमारे। और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन BGP हमें दिखाओ। और जैसा ही कमांड चला आप देख सकते हो नो सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो नो सिंक्रोनाइजेशन, कोर राउटर C पे भी नो सिंक्रोनाइजेशन, कोर राउटर D पे भी नो सिंक्रोनाइजेशन। तो मैंने क्या कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल्ड रहता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 12.2 या उससे बड़ा है। तो फिलहाल आपको पता है 12.4 मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर बहुत पुराना आपका iOS आपके GNS या रियल डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन इनेबल रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं कोर राउटर B पे, मैं फिर से एक बार वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा कोर राउटर D पे, सो IPBGP, ऑब्वियसली दिस इज 200.200.0 एक वैलिड रूट है और आपके पास अवेलेबल है थ्रू 4.4.4.4। तो मैं सभी कमांड पे, सभी राउटर्स पे एक कमांड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। सब अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम में है, तो इसमें इंडिविजुअल चलाना पड़ेगा। राउटर BGP ये है 100 में, और ये है राउटर BGP that is 200 मैन सी, राउटर BGP 200। और लास्ट में कोर राउटर D के पास भी मैं आ जाता हूँ, राउटर BGP 300। और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए SYN टैब में प्रेस कर देता हूँ। वेरी गुड, इसे कॉपी कर लेता हूँ इधर और पेस्ट। फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन कमांड सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, होपफुली TS से भी कुछ लेना देना नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है हमें। और एक चीज़ हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ उस नेटवर्क के बारे में। तो डू सो IPBGP, यस, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। मुझे एक कमांड और एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि नेबर आपको पता है इसका कन्वर्जेंस काफ़ी स्लो होता है या सबसे स्लो होता है। तो डू क्लियर IPBGP, जिसमें हमने हार्डली रीसेट किया, स्टैटिक ऑल सभी नेबर। सेम कमांड यहाँ पे भी चलाता हूँ, डू क्लियर IPBGP स्टैटिक। और अब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है कोर राउटर D पे। मैं सबसे पहले वेरिफिकेशन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हमारा नेबर रीसेट हो चुका है और सो IPBGP देयर वी गो। यहाँ पे हम कोई रूट नहीं लर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि TS राउटर जो कि IGP प्रोटोकॉल रन कर रहा है, उसे पता नहीं कि 200.200.0.0 कहाँ है, जो कि ये लूप बैक का एड्रेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें होंगी। हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूँ अपने BGP से लर्न किए हुए नेटवर्क को, ताकि ये जान जाए। और कोर राउटर C को कैसे पता है कि कोर TS टर्मिनल सर्वर जो हमारा जो राउटर है
वो कैसे जान गया 200.200.200.0.0 के बारे में? कोर राउटर सी को कैसे पता चल जाएगा कि जो टीएस है मेरा, ये राउटर जिस पे आईजीपी चल रहा है, वो 200.0.0 जान गया? ऑब्वियसली, क्योंकि आप आईजीपी प्रोटोकॉल इस पे और इस पे रन कर रहे हो, मतलब इनहेंस आईजीआरपी। तो इनहेंस आईजीआरपी अपना अपडेट इस पे भेजेगा तो वो जान जाएगा। सो क्लियर ऑफ प्लीज 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 एंड कोर राउटर बी पे मैं आता हूँ। कोर राउटर सी पे एक बार चेक करते हैं हम। डू सो आईपी बीजीपी, तो मेरे पास तो है ऑब्वियसली, बट वो वैलिड मैं 2.2.2 में बताया मुझे वैलिड है, बट बेस्ड नहीं है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। या तो सिंक्रोनाइजेशन मैं ऑफ कर दूं तो भी चला जाएगा, या फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। राउटर यहाँ पे क्या क्या कमांड राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, डू सो आईपी प्रोटोकॉल से मैं सो आईपी प्रोटोकॉल ये नहीं पाया, ठीक है। डू सो आईपी प्रोटोकॉल कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पे रन हो रहे हैं, सॉरी प्रोटोकॉल सो इनहेंस आईजीआरपी 1 भी यहाँ पे लर्न हो रहा है। एक्चुअली यही मुझे पता करना था। राउटर इनहेंस आईजीआरपी 1 में मैं जाता हूँ, हमने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट करो बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम 200 पे, क्योंकि कोर राउटर बी पे 200 चल रहा है। और मैट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनहेंस आईजीआरपी में तो इंडिफिनिट या इन्फिनिट कहना चाहिए, मैट्रिक्स होता है, इस वजह से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो बैंडविड्थ मान के चलो 1000, कुछ भी आप रख सकते हो। डिले यहाँ पे चलो 100 दे देते हैं। रिलायबिलिटी कितना विश्वसनीय है ये, 255, 100% रिलायबल है ये लिंक। या MTU नहीं, लोड कितना है इस पे, लोड चलो 100, लोड बहुत ज़्यादा नहीं है। MTU 1500 एंड होपफुली TS पे अगर हम आए तो इनहेंस आईजीआरपी के थ्रू 200.200.0 को हम देखेंगे। सो ADITYA दैट इज आदित्य और लॉगिन। सो आईपी राउट करके अगर हम देखें तो इनहेंस आईजीआरपी आप देख सकते हो EX का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा जब इनहेंस आईजीआरपी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल इनहेंस आईजीआरपी के थ्रू हमने लर्न किया, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 200 और 200 या डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में आया है से आया है। कोर राउटर सी पे भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं सो आईपी राउट करके, तो ये भी लर्न कर रहा है 200.200.0.0 को। और दूसरा कमांड अगर हम चलाएं सो आईपी बीजीपी, तो जो मैं चाहता था वही यहाँ पे आ गया। 200.200.0.0 वैलिड रूट है, लेकिन आगे एक R लगा है, R बताता है RIB फेलियर। इट मीन्स सेम नेटवर्क that I learn from the BGP is already learned from some other routing protocol that has lower administrative distance than BGP, because अभी हमने enhance IGRP के थ्रू लर्न किया और हमने BGP के थ्रू भी लर्न किया। तो अब ये कह रहा है कि सॉरी वैलिड रूट तो है बट बेस्ड नहीं है, क्योंकि बेस्ड मैं enhance IGRP को लेना चाहूँगा। यही वजह है कि हमारे राउटिंग टेबल में देखें तो 200.200.0.0 आ गया है, बट नॉट अ बिग डील, नॉट अ इश्यू, दैट्स गुड, फाइन। कोर राउटर डी पे हम देखें कि पहले हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा था, क्या अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये चीज़ हमारा हुआ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जब मैं एक ट्रांसपेरेंट AS हूँ तो हमारे IGP सिंक्रोनाइज होने चाहिए BGP नेटवर्क से, IGP नेटवर्क BGP नेटवर्क से सिंक्रोनाइज होने चाहिए। सो गुड, हम यहाँ पे देख लिए, तो ये दो चीज़ें हमारी वेरीफाई हो चुकी हैं। टाइमर कैसे चेंज करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। आई होप कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है, और 1 मिनट मैं बताना चाहूँगा उसे फिर से। और देयर वी गो, टाइमर नहीं बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा। AD ऑफ BGP जब हम eBGP से लर्न करते हैं तो 20 होता है, जब हम IBGP से लर्न करते हैं तो 200 होता है। यही वजह था कि
इनहेंस IGRP से मैंने लर्न किया। सबसे पहले तो देखिए 200 का नेटवर्क मैंने कोर राउटर सी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, दैट इज 200.0.0.0 हमने लर्न किया था कहाँ से, इनहेंस IGRP जिसका AD होता है 90, और साथ ही साथ मैंने लर्न किया था IBGP से, तो IBGP का होता है 200, दैट्स वाई ये RIB आपका दिखा रहा था। दैट मीन्स कि मैंने ऑलरेडी उस नेटवर्क को लर्न किया था। सो हम उसे ट्यून या ट्यून करना, हम कैसे ट्यून कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे, और टाइमर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइमर का कोई इशू नहीं होता है, कोई भी किसी का डिफरेंट शायद श्योर नहीं हूँ मैं, या मुझे श्योर हो जाना चाहिए फिर बताना चाहिए। बस प्लीज़ वेट। यस ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स मुझे खुद चेक करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है। बीइंग ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल, मिस्टेक इज़ पॉसिबल। सो ठीक है, कोई केयर नहीं है यहाँ पे इनकी टाइमिंग कितनी है, इनकी टाइमिंग कितनी है। फिलहाल हम उसे चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करने के लिए उसी तरह हमें जाना पड़ेगा जैसे कि हम इनहेंस IGRP या अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में करते हैं। तो डिस्टेंस चेंज हम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं BGP या MBGP। फिलहाल मैं ये दो चीज़ें अभी स्किप करता हूँ, ये डिफरेंट चीज़ है मल्टी BGP और BGP। फिलहाल के लिए मैं ये बताता हूँ, इसमें असल में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट चलो मैं रख देता हूँ 2। एक्सक्यूज मी, डिस्टेंस, डिड आई टेकन मिस्टेक, प्लीज वेट। यस, ओ मैन, आई टेकन मिस्टेक। ओके, मैं भी ह्यूमन हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया। एक्चुअली कमांड चलाना चाहिए डिस्टेंस BGP एंड देन क्वेश्चन मार्क। यस, देयर इट इज। एक्सटर्नल का कितना हो, तो हम जैसा कि देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सटर्नल का 20 है। चलो एक्सटर्नल का मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आ गया एक्सटर्नल का 20, देन क्वेश्चन मार्क करता हूँ इंटरनल का कितना हो, तो मैंने कह दिया 30। एनीथिंग एल्स? डिस्टेंस फॉर लोकल राउटर 10 एंड देयर इट इज। सो इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लोकल राउटर का हमने दे दिया। सेम चीज़ मैं कोर राउटर B, A और C पे करने जा रहा हूँ। चूँकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आपको सेम चलाना। एंड ऑलमोस्ट डन सब पे। और लास्ट कमांड टाइमर BGP के टाइम इंटरवल का हम क्या टाइम रखना चाहते हैं। सपोज मैंने 10 सेकेंड कर दिया एंड होल्ड डाउन टाइमर 30 फॉर ऑटोनोमस सिस्टम, और डिफाइन कर सकते हैं सभी पे हमारा अप्लाई हो। और मैंने फिलहाल तो सभी के लिए कर दिया। कोर राउटर A पे सेम चीज़ हम किसी पे और कहीं भी कर सकते हैं। टाइमर्स की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चूँकि जैसा मैं देख रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो एक बार मैं सिर्फ ब्रीफ में रिकॉल करके और वीडियो को मतलब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो हमने लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग करके देखा। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मेथड किस लिए यूज़ होता है ये हमने देखा। टाइमर को हम चेंज कैसे करते हैं, AD को हम चेंज कैसे करते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल AD को। और इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि सभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। डिफ़िकल्ट होता है कि वीडियो जब लंबा होता है उसे अपलोड करने में। आई होप कि जो चीज़ें अब तक हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आई है। एंड आई वॉन्ट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग।